Hello my dear students, welcome back to the class. So in today's session we are going to continue the story of the necklace. Okay, so in the last session we had discussed that how the Louises they had lost the necklace that they have bought from the Madame Forestier, and now they are worried, they have lost all the hopes that they will get the necklace back. Okay, and then now they have decided that they will return a copy of the necklace that they had borrowed from Madame Forestier. अभी आगे क्या होता है हम देखेंगे, बिकॉज अभी वो लोग उसकी कॉपी मैडम फॉरेस्टर को रिटर्न देने वाले, बिकॉज उन्होंने केसेस किए, पुलिस को इन्फॉर्म किया, वो खुद ढूंढ रहे थे, ऑल द स्ट्रीट्स ऑल द लेन दे हैड सीन बट दे हैड नॉट फाउंड दी ज्वेल. सो नाउ ये पेज नंबर हमने 43 पे स्टॉप किया था. आई हैड मार्क्ड हियर. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू फ्रॉम दिस पैराग्राफ. In a shop of the palace royal, they found a chaplet of diamonds. Chaplet means what? A round necklace, okay, which seemed to them exactly like the one they had lost. It was valued at 40,000 francs. They could get it for 36,000. Okay, so now this is a shop named Palace Royal. There they had seen a same dicto necklace, okay, that was of diamonds. और उसका प्राइस कितना था? 40,000 francs. And now they could get it for only 36,000 because हो सकता है कुछ उनको डिस्काउंट वगैरह मिल रहा हो. Loisel possessed 18,000 francs, while his father had left, which his father had left him. He borrowed the rest. He made ruinous promises, took money from usurers. Usurers means what? The people, those who lend money. जो पैसे देते हैं ना, money lenders जो होते हैं, उनको usurers बोलते हैं. And the whole race of lenders. Then he went to get the new necklace, depositing on the merchant's counter 36,000 francs. तो अब यहाँ पर वो 36,000 का नेकलेस था, लेकिन उसके पूरे पैसे इन लोगों के पास नहीं थे. लोसल के पास सिर्फ कितने पैसे थे? 18,000 फ्रैंक्स थे, जो कि उसके फादर ने उसे दिए थे. बाकी के पैसे उसने अपने लोगों से झूठ बोलकर, मनी लेंडर्स को झूठी प्रोमिसेस कर कर कि मैं आपको बाद में दे दूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, इस तरीके से उन्हें बहुत सारे मनी लेंडर्स से पैसे बोरो किए, जिस पे इंटरेस्ट रेट भी काफ़ी ज़्यादा हाई चार्ज किया जा रहा था. और उसने ये पूरे पैसे जमा करके 36,000 फ्रैंक जो मर्चेंट है, उस दुकान का जो ओनर है, उसके काउंटर पे रख दिए और वो ज्वेल लेकर आ गए. When Madame Loisel took back the jewels to Madame Forestier, the latter said to her in a frigid tone. Frigid means very angry tone. You should have returned them to me sooner, for I might have needed them. So now, जब Madame Loisel means Matilda, जब वो नेकलेस लेकर मैडम फॉरेस्टर के घर गई, तो मैडम फॉरेस्टर काफ़ी ज़ोर से उसे चिल्लाकर बोलती गुस्से से कि तुम्हें ये मेरा नेकलेस पहले ही रिटर्न कर देना चाहिए था, बिकॉज शायद मुझे इसकी ज़रूरत पड़ जाती, तुम काफ़ी इसे लेट लाई हो. Madame Forestier did not open the jewel box as Madame Loisel feared she would. What would she think if she should purchase the substitution? What should she say? Would she take her for a robber? So now, actually Madame Loisel was very worried. She was very afraid. Why? Because इन लोगों ने एक कॉपी दिला कर दी थी मैडम फॉरेस्टर को. मतलब वो नेकलेस एक्चुअल वो नेकलेस नहीं था, ना ही वो डुप्लीकेट था, बट उसके ही तरह दिखने वाला नेकलेस इन लोगों ने सब्सटीट्यूशन में दिया था, मतलब उसकी जगह पर उन्होंने रिटर्न दिया था. तो अब मैडम लुइसल जब गई नेकलेस लेकर, तो उन्होंने क्या देखा कि मैडम फॉरेस्टर तो काफ़ी गुस्से में है, और अभी वो ये सोच रहे थे कि मैडम फॉरेस्टर ये बॉक्स नहीं खोलना चाहिए, बिकॉज अगर वो बॉक्स खोलेंगी तो उन्हें ये पता चल जाएगा कि जो नेकलेस उन्होंने दिया है वो उनका नहीं है, बल्कि उसकी जगह पे एक सब्सटीट्यूशन है. सो वो सोच रही हैं कि क्या मैडम फॉरेस्टर उसे चोरी का इल्ज़ाम लगाएंगी, उसे ऐसा लगेगा कि मैंने ज़बरदस्ती या जानबूझकर वो नेकलेस मेरे पास रख लिया है और उन्हें दूसरा नेकलेस दिया है. Madame Loisel now knew the horrible life of necessity. She did her part, however completely heroically. It was necessary to pay this frightful debt. She would pay it. They sent away the maid. They changed their lodgings. They rented some rooms in an attic. Attic means what? Roof space. आपको याद है मटिल्डा काफ़ी डिमांड करती थी, वो बोलती थी कि क्या मेरा गंदा घर है, शैबी वॉल्स है मेरे घर की, मेरे फर्नीचर ख़राब है, ये टूटा फूटा है, मुझे ऐसी रॉयल लाइफ चाहिए, स्पून सिल्वर का होगा, गोल्ड का होगा, मैं ऐसे ड्रेसेस पहन के घूमूंगी. अब उसे अपनी जो घर की बेसिक नेसेसिटीज़ है उसकी भी रियलाइजेशन हो रही है कि कितनी इंपॉर्टेंट होती है छोटी छोटी चीज़ें लाइफ में. अब ये जो इन्होंने कर्जा लिया हुआ था, ये जो डेट था इनके पीछे, इसको पे करने के लिए उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशान होना पड़ रहा था, बट मैटिल्डा ने हर एक बार ट्राई किया कि वो अपना ये जो कर्जा है उसे निकाल सके, उसे पे कर सके. तो इसलिए उन्होंने क्या किया, अपने घर की जो नौकरानी थी उसे आने काम पे मना कर दिया, जो उनके जो लॉजिंग्स थी, मतलब जहाँ वो रहते थे, वो उनको चेंज कर दिया, दूसरी जगह वो लोग लेने चले गए. इवन उन्होंने कुछ जो पहले के जो उनके घर थे वो उनको रूम को रेंट्स पे दे दिए. ओके, अभी मेड भी नहीं है, घर भी चेंज हो गया, काफ़ी गरीब सी लाइफ हो गई है, तो अभी उसे रियलाइज़ हो रहा है कि क्या होता है ये सब. शी लर्न द ओडियस वर्क ऑफ अ किचन. ओडियंस मीन्स व्हाट? डर्टी. बर्तन धोना, कपड़े धोना, ये से बिल्कुल पसंद नहीं था, राइट. तो अभी वो उसे डर्टी वर्क बोल रही है. सब उसने सीख लिया था जिसको वो गंदा बोलती थी.
She washed the dishes. She washed the soiled linen. Soiled linen. Linens means what? Cloth, their clothes and dish clothes, which she hung on the line to dry. She took down the refuse to the street each morning and brought up the water, stopping at each landing to catch her breath. And clothed like a woman of the people, she went to the grocers, the butchers, and the fruiters, with her basket on her arm, shopping, haggling to the last sou of her miserable money. तब उसकी हालत कैसी हो गई थी? वो एकदम थकी थकी रहती थी. वो ऐसे नॉर्मल कपड़े पहनती थी जैसे किसी भाजी वाले की, किसी फ्रूट वाले की बीवियाँ पहनती है. ओके, एकदम नॉर्मल सी लाइफ जी रही थी. हर दिन बचा हुआ कचरा था उसे फेंकने जाती थी, पानी भरती थी रुक रुक के. जब उसकी सांस प्रॉब्लम होती थी उसे ब्रीदिंग करने में, तो वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे परेशान वाली ज़िंदगी जी रही थी. और वो शॉपिंग भी ऐसी करती थी, इतनी बार्गेनिंग करके, जैसे कि उसके पास ही लास्ट अमाउंट बचा हो. द हस्बैंड वर्कड इवनिंग, putting the books of some merchants in order, and nights he often did copying at 5 sous a page. And this life lasted for 10 years. At the end of 10 years, they had restored all life. They had restored all. Okay, तो जो मटिल्डा का हस्बैंड है वो भी काफ़ी हार्ड वर्क कर रहा था. वो भी काफ़ी ज़्यादा, हम बोल सकते हैं, एक्स्ट्रा वर्क कर रहा था. वो मर्चेंट्स की बुक रखता, उसे कॉपी करने के 5 सौ लेता वो एक पेज के. ओके, सोज इज टाइप ऑफ अ करेंसी, आई थिंक सो. ओके, फ्रेंच कॉइन है, देखो यहाँ पर दिया है इसका मीनिंग. ओके, तो 5 सोज लेता था एक पेज को कॉपी करने का. तो ऐसा एक्स्ट्रा वर्क कर करके ये एक्चुअल में इनका कितना दिन चला? 10 साल तक चला ये सब. ओके, और लास्ट में 10 ईयर्स के बाद उनकी सारी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई. Madame Loisel seemed old now. She had become a strong, hard woman, the crude woman of the poor household. Her hair badly dressed, her skirts awry, her hands red. She spoke in a loud tone and washed the floors with large pails of water. But sometimes when her husband was at the office, she would seat herself before the window and think of that evening party of former times, of that ball where she was so beautiful and so flattered. So now, अब 10 साल के बाद मैडम लोसेल मीन्स मैटिल्डा काफ़ी बूढ़ी हो चुकी है. वो अभी भी लादी पोछती है अपने घर की. बड़े बड़े उसके हैंड्स एकदम लाल लाल हो गए हैं. उसकी जो वॉइस है वो काफ़ी हार्श हो गई है. मीन्स बहुत ज़्यादा ये सब सोचती है. और कभी कभी जब हस्बैंड उसके ऑफिस में रहते हैं तो वो खिड़की में बैठ के ये सोचती है कि क्या खूबसूरत पार्टी थी वो, मैं कितनी खूबसूरत लग रही थी वो टाइम पे. हाउ वुड इट हैव बीन इफ़ शी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस? हु नोज हाउ सिंगुलर इज लाइफ एंड हाउ फुल ऑफ चेंजेस, हाउ स्मॉल अ थिंग विल बी और सेव वन. सो नाउ शी हैज़ फाइनली रियलाइज्ड कि क्या होता ना अगर मैं वहाँ जाती ही नहीं, नेकलेस घूमता ही नहीं, कि किस तरीके से लाइफ में छोटी छोटी चीज़ें हमारी ज़िंदगी बदल देती हैं. अगर वो नेकलेस घूमता ही नहीं तो ये लोगों को कर्जा देना ही नहीं पड़ता, और वो जो नेकलेस था वो लौटाने के चक्कर में उनको इतना परेशान होना ही नहीं पड़ता. वन संडे एज शी वॉज टेकिंग अ वॉक इन द चैम्प्स एलिसिस to rid herself of the cares of the week, she suddenly perceived a woman walking with a child. So now one Sunday when she was taking a walk at this place in the Champs Elysees, तो यहाँ पर उसको वॉक करते हुए एक औरत दिखी. वो औरत कौन थी? Yes, it was Madame Forestier, still young, still pretty, still attractive. Madame Lucille was affected. Should she speak to her? Yes, certainly. And now that she had paid, she would tell her all. Why not? So now अभी मैडम लोसल मीन्स मैटिल्डा सोचती है कि क्या मुझे इससे बात करना चाहिए. फिर वो ये सोचती है कि हाँ, मैंने तो इनका सब कर्जा दे चुके हूँ, मैंने तो इनको रियल वाला नेकलेस दिला के दी हूँ, तो हाँ मुझे इसे भी बात करके सब चीज़ें बता देनी चाहिए कि एक्चुअल में जो मैंने दिया था वो दूसरी थी, नेकलेस ओरिजिनल वाली नहीं थी जो उन्होंने उसे दी थी. शी अप्रोच हर. गुड मॉर्निंग जेनी. Her friend did not recognize her and was astonished to be so familiarly addressed by this common personage. So Matilda फॉरेस्टर को क्या बुलाती थी? जेनी. ओके, तो ये जो मैडम फॉरेस्टर है वो इसे पहचान नहीं रही है, लेकिन उसे ये याद था कि उसका कोई क्लोज फ्रेंड जेनी बोलकर उसे बुलाता था. शी स्टैमर्ड, बट मैडम आई डू नॉट नो, यू मस्ट बी मिस्टेकन. सो अभी वो बोल रही है पहचानने के लिए, मतलब काफ़ी ज़्यादा ओल्ड दिख रही है ना अभी मैटिल्डा, तो वो पहचान नहीं पा रही है मैडम फॉरेस्टर उसे. तो बोलती मैडम मैं आपको जानती नहीं, शायद से तुमसे कोई गलती हो गई, मैं आपकी फ्रेंड नहीं हूँ. वो बोलती नो, आई एम मैटिल्डा लोइसल. Her friend uttered a cry of astonishment. Astonishment what? What we say? Surprised. Oh my poor Matilda, how you have changed. तो वो देखकर एकदम शॉक हो जाती है मैडम फॉरेस्टर. एंड शी सेज टू Matilda, my dear, what happened to you? Why you have become so poor? What happened to you? How you have changed so much? Yes, I have had some hard days since I saw you, and some miserable ones, and all because of you. Because of me? How is that? So now Matilda is trying to tell her, yes, I had various hard days.
जब से मैं तुमसे मिली हूँ, जब से तुमसे मैं बात करके गई हूँ, तब से मेरी लाइफ पूरी जो है वो मिजरेबल हो चुकी है, काफ़ी बुरी चल रही है। तो अभी मैडम फॉरेस्टर सरप्राइज हो रही हूँ, बोली मेरी वजह से? वो कैसे? यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस दैट यू लोन मी टू वेयर टू द मिनिस्टर्स बॉल? सो नाउ मैटिल्डा इज ट्राइंग टू रिमाइंड हर कि तुम्हें याद है तुमने मुझे डायमंड नेकलेस दिया था मिनिस्टर्स की बॉल पार्टी पे पहनने के लिए? येस वेरी वेल। वेल आई लॉस्ट इट। हाउ इज़ दैट सिंस यू रिटर्न इट टू मी? सो मैडम फॉरेस्टर बोलती है कि ये कैसे हो सकता है, बट तुमने तो मुझे वो रिटर्न दे दिया था, तो तुम कैसे बोल रही हो कि वो गुम हो चुका है? आई रिटर्न अनदर टू यू एग्जैक्टली लाइक इट एंड इट हैज़ टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट. You can understand that it was not easy for us who have nothing, but it is finished and I am decently content. So now she says, yes, मैंने तुम्हें उसका कॉपी दिया था, तुम्हें exactly उसकी तरह दिखने वाला एक नेकलेस दिया था, वो नेकलेस वो नहीं था, और उसे तुम्हें देने के लिए हम लोगों को 10 साल तक उसके पैसे चुकाने पड़े. और अब मुझे समझ में आ गया कि हर चीज़ इतनी ईजी नहीं है, बट देन टू मैं अभी सब चीज़ में सेटिस्फाइड हूँ. आई एम डिसेंटली कंटेंट विथ वॉट आई हैव. Madam Forrester stopped short. She said, you say that you bought a diamond necklace to replace mine. So now Madam Forrester बोल रही है कि तुम ये बोलना चाहती हो कि तुमने मेरा नेकलेस रिप्लेस करने के लिए मुझे ओरिजिनल डायमंड नेकलेस ला के दिया है? Yes, you did not perceive it then. They were just alike. And she smiled with proud and simple joy. Madam Forrester was touched and took both her hands as she replied, oh my poor Matilda, mine were false. They were not worth over 500 francs. So now मैडम फॉरेस्टर को मैटिल्डा बोलती, क्यों तुम नहीं पहचानी? बे वो हाँ, वो हो सकता है कि तुम नहीं पहचानोगी बिकॉज वो दोनों नेकलेस काफ़ी सेम थे. फिर वो मैडम फॉरेस्टर उसकी तरफ देख के हंसती हैं, दोनों हाथ उसके अपने हाथ में लेती हैं और बोलती है, माई पुअर मैटिल्डा, मेरा जो नेकलेस था वो नकली था, उसकी जो वैल्यू थी वो 500 फ्रैंक्स भी नहीं थी. ओके, सो हियर वी हैव एंडेड द चैप्टर. इज दैट क्लियर? सो नाउ यू रियलाइज कि जितना हमारे पास होता है उसमें हमें सेल्फ कंटेंट, सेल्फ हैप्पी रहना चाहिए. वी शुड नॉट डिमांड फॉर अदर्स. ओके, वी शुड नॉट डिमांड फॉर थिंग्स दैट अदर्स पोजेसेस. ऐसा नहीं कि किसका देखकर, किसी का सोचकर हम लोग ये बोले उसके पास ऐसा है, उसके पास वैसा है, तो हमें भी वैसा रहना चाहिए. नो, जितना हमारे पास है उसमें ही हमें हैप्पी और सेटिस्फाइड रहना चाहिए. Is that understood? So here we have completed the text of the necklace. So just take 1 minute and just go through the things that we have discussed so far. उसके बाद हम ये text start करेंगे, the hack driver. Just go through the text, do not waste your time. आई होप आप सबको ये मैटिल्डा का चैप्टर द नेकलेस समझ में आया. So now we are left with only 2 chapters, the hack driver and Bholi. Okay, 10th lesson जो है वो deleted है आपके सिलेबस से. Is that understood to everyone? Okay, so let us begin with this chapter, the hack driver. Now what do you mean by hack driver? Hack driver उसको बोलते हैं जो हॉर्स कार्ट चलाता है. ठीक है, तो हॉर्स कार्ट चलाने वाले को यहाँ पर हैक भी बोला जाता है, हैक ड्राइवर बोला जाता है. इज दैट क्लियर? सो अ यंग लॉयर कम्स टू अ विलेज टू सर्व summons on Oliver Lutkins. A friendly hack driver takes him round the village in search of Lutkins. Does he finds him? Who is Lutkins? Okay, so now एक young lawyer एक विलेज जाता है, किसको ढूंढने के लिए? ऑलिवर लुटकिंस को ढूंढने के लिए. और उसे क्या देना चाहते हैं? समन. समन आपको पता है एक डॉक्यूमेंट ऐसा होता है जो कि कोर्ट देती है अपने लॉयर्स को
या फिर ऐसे पर्सन को जो कि कोर्ट के लिए काम करता है, और वो समन में ये लिखा होता है कि आपको ऑर्डर्स हैं कोर्ट के सामने प्रेजेंट रहने के लिए। तो यहाँ पर वही हुआ है, एक जो जूनियर लॉयर है वो समन लेकर ढूंढ रहा है ओलिवर लुटकिंस को, वो उसे देना चाहता है। ठीक है, नाउ सी, after graduating with honors, I became a junior assistant clerk in a magnificent law firm. I was sent not to prepare legal briefs, but to serve summons, like a cheap private detective. I had to go to dirty and shadowy corners of the city to seek out my victims. Some of the larger and more self-confident ones even beat me up. I hated this unpleasant work and the side of my city life it revealed to me. I even considered fleeing to my hometown, where I could have been a lawyer right away without going through this unpleasant training period. So now what the author is trying to say that after getting graduation in honors, okay, लॉ में उसने ग्रेजुएशन करने के बाद में वो एक जूनियर असिस्टेंट बन जाते हैं, क्लर्क बन जाते हैं, जूनियर असिस्टेंट क्लर्क बन जाते हैं। ओके, सो इन मैग्निफिशेंट लॉ फर्म जब उनके ऑनर्स कंप्लीट होते हैं, ऑनर्स इज़ अ डिग्री, ओके, सो ऑनर्स में कंप्लीट करने के बाद डिग्री उन्होंने क्या किया, एक जूनियर असिस्टेंट क्लर्क की प्लेस पे वो लॉ फर्म ज्वाइन कर लेते हैं, और वहाँ पर उनको लीगल नोट्स लेके नहीं भेजा जाता है, बट उनको एक डिटेक्टिव जैसा काम करना पड़ता है कि लोगों तक समन पहुंचाए। आपको पता है समन एक ऐसी नोटिस होती है जिसे लेने से लोग ज़्यादातर डरते हैं, बिकॉज उनको कोर्ट के सामने आना नहीं होता है, मे बी शायद किसी विटनेस की वजह से या फिर किसी हियरिंग के लिए, फॉर एनी रीज़न, ओके, बट दे डू नॉट लाइक दैट दे वुड बी प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट। अब इसके लिए इस ऑथर को यहाँ पर जो लॉयर है उसे काफ़ी छोटी छोटी जगह पे डिटेक्टिव बन के जाना पड़ता था, उसे ये काम बिल्कुल पसंद नहीं आता था। वो ये सोचता था दैट इफ़ आई वुड हैव गॉन टू माई विलेज देन आई विल डायरेक्टली बिकम अ लॉयर इंस्टेड ऑफ प्लेइंग लाइक दिस। ओके, यहाँ पर ये छोटे छोटे से काम करने पड़ते हैं, लोगों से मुझे भागना पड़ता है, लोगों को ढूंढना पड़ता है, और कभी कभी जो एकदम काफ़ी ज़्यादा मिशीवियस और डेंजरस लोग होते हैं वो तो कभी कभी मुझे मार भी देते हैं, फटके भी दे देते हैं कि तुम क्यों आए हो इस समन लेकर। ओके, तो ये बोलता है कि ये इतना गंदा सा ट्रेनिंग पीरियड है जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ये छोड़कर मैं यहाँ से सिर्फ भाग जाना चाहता हूँ। ओके, सो आई रिजॉइज्ड वन डे, रिजॉइज मीन्स व्हाट, बिकम हैप्पी, when they sent me out 40 miles in the country to a town called New Million to serve summons on a man called Oliver Lutkins. We needed this man as a witness in a law case and he had ignored all our letters. So एक दिन ऑथर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें एक जगह पे भेजा जा रहा है कोर्ट के थ्रू और वो 40 किलोमीटर दूर है। एंड नाउ वाई दिस ऑथर इज़ बिकमिंग हैप्पी ओवर हियर, बिकॉज ही इज़ वेरी हैप्पी कि उन्हें कहीं दूर जाके घूमने के लिए मिलेगा। ओके, एंड वेयर ही वांटेड, वेयर ही वाज अबाउट टू गो टू अ विलेज कॉल्ड न्यू मिलियन वेयर अ पर्सन कॉल्ड ओलिवर लुटकिंस lived, and the court was asking the author that he had to bring this man because he was a witness in a law case। और इसने अभी तक के सारे लेटर्स उन लोगों के इग्नोर किए हैं, इसीलिए यहाँ पर अभी डिटेक्टिव बनकर ऑथर को भेजा जा रहा है कि तुम जाओ इस गाँव में इस पर्सन को समन देकर आओ। When I got to New Million, my eager expectations of a sweet and simple country village were severely disappointed. Its streets were rivers of mud with rows of wooden shops, either painted a sore brown or bare any paint at all. The only agreeable sight about the place was the delivery man at the station. He was about 40, red-faced, cheerful and thick about the middle. His working clothes were dirty and well-worn, and he had a friendly manner. You felt at once that he liked people. So now author was thinking that he will see a very beautiful and very nice place, but actually he was very sad to see the place because the roads at these village were quite dirty, they were full of mud, okay, and he could hardly see any shop nicely painted. आधे या तो कुछ काफ़ी गंदे कलर से पेंट थे या फिर किसी पे पेंट सी नहीं था। जो एक चीज़ उसे अच्छी लगी वो ये थी कि एक पर्सन खड़ा हुआ था स्टेशन पे, वो काफ़ी रेड था, उसका जो फेस है वो रेड है, वो 40 ईयर्स के अराउंड एज है उसकी, और वो ठीक है मिडल से, मतलब वो थोड़ा सा फैट है। अब उसे ये देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद उसे लोग बहुत अच्छे लगते हैं, वो काफ़ी फ्रेंडली रहता है। I told him to find a man named Oliver Lutkins. So now what author did? Author approached that man and he asked him कि मुझे एक पर्सन को ढूंढना है जिसका नाम क्या है? Oliver Lutkins. Lutkins? I saw him around here about an hour ago. Hard fellow to catch though, always up to something or other. He's probably trying to start up a poker game in the back of Frit's shop. I'll tell you boy, is there any hurry about locating Lutkins? So now, Lutkins, अभी वो ऑथर उस पर्सन को जाके बात करते हैं, उसे बोलते कि क्या तुम लुटकिंस को ढूंढ रहे हो? लुटकिंस को हाँ मैंने अभी 1 घंटे पहले ही देखा था। अब वो फ्रिट्स के शॉप के पीछे गया होगा। फ्रिट्स इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन।
वो जाके उसको बोलता है, वो बोलता है कि अभी उसकी शॉप के पीछे जाएगा वो और पोकर गेम स्टार्ट करेगा। पोकर इज़ अ टाइप ऑफ कार्ड गेम। ओके, तो देखते हैं, मैं तुम्हें बताता हूँ, क्या कोई जल्दी है लुटकिंस को ढूंढने की? ऐसे वो उसे पूछता है, किसको? ऑथर को। येस, आई वॉन्ट टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन बैक टू द सिटी, आई वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सीक्रेट अबाउट इट। वो बोलते हैं हाँ, मुझे उसे जल्दी से जल्दी पकड़ना है बिकॉज मुझे दोपहर के ट्रेन से रिटर्न जाना है सिटी, और मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट सीक्रेट भी उसे बताना है, उसे बोलना है। I'll tell you what, I've got a hack. Hack means a horse cart. I'll get it out and we can drive around together and find Lutkins. I know most of the places he hangs out. So now what the hack driver says कि मेरे पास एक हैक है, मैं उसे लेकर आता हूँ और फिर हम ढूंढेंगे उसे, लुटकिंस को। मुझे पता है कि वो कौन सी प्लेसेस पे जाता है। He was so open and friendly that I glowed with warmth of his affection. I knew of course that he wanted the business, but his kindness was real. I was glad the fair money would go to this good fellow. I managed to bargain down to $2 an hour, and then he brought from his house nearby a sort of large black box on wheel. He remarked, "Well, young man, here is the carriage." And his wide smile made me into an old friend. These villagers are so ready to help a stranger. He had already made it his own task to find Oliver Lutkins for me. So now, what happened? As and when the author told him that he wanted to catch Oliver Lutkins by afternoon, so he said, "Okay, my dear, we'll do one thing. मेरे पास एक कार्ड है, मेरे पास एक हैक है, मैं उसे लेकर आऊँगा और फिर हम उसे ढूंढेंगे बिकॉज मुझे पता है कि वो कौन सी प्लेसेस पे जाता है." सो आफ्टर हियरिंग ऑल दिस स्टफ, द ऑथर बिकेम वेरी हैप्पी. ही सेड कि कितने अच्छे, कितना काइंड पर्सन है ये मेरी हेल्प कर रहा है. ओके, तो मतलब मेरा जो काम है लुटकिंस को ढूंढने का, ये तो ऐसे ढूंढ रहा है कि जैसे उसे खुद को ही उसे ढूंढना हो. अब वो ये भी सोच रहे हैं ऑथर कि ये जो काम हैक ड्राइवर कर रहा है वो इसलिए कर रहा है ताकि उसे कुछ पैसे मिले, लेकिन वो इतना परेशान नहीं था उसे पैसे देने के लिए, क्योंकि वो तो कंपनी पे करने वाली थी, वो तो कोर्ट पे करने वाला था पैसे, है ना, वो कोर्ट के काम के लिए आया हुआ था ऑथर, तो कोर्ट पैसे देगा. बट ही वॉज हैप्पी कि ये जो पैसे हैं वो एक अच्छे इंसान को जा रहे हैं. तो उन्होंने बार्गेनिंग की. अब उन लोगों ने बार्गेन करके कितना डिसाइड किया कि 1 घंटे की राइड पे वो $2 पे करेंगे, और ये बार्गेनिंग उनकी सेटल हो जाती है. जो हैक ड्राइवर है वो ओके बोलता है कि ठीक है, फॉर एन आवर यू पे मी $2. ओके, एंड ही वेंट इनसाइड हिज हाउस एंड ही ब्रॉट अ लार्ज ब्लैक बॉक्स ऑन अ व्हील. ओके, एंड ही सेज कि चलो जाके हम ऑलिवर लुटकिंस को ढूंढते हैं. ये बिहेवियर देखकर यंग मैन का जो ऑथर है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और वो ये सोचते हैं कि कितना काइंड हार्टेड मैन है, एंड ही इज़ डूइंग इट एज इफ इट इज़ हिज ओन टास्क टू फाइंड ऑलिवर लुटकिंस. He said, "I don't want to interfere, young fellow, but my guess is that you want to collect some money from Lutkins. He never pays anybody a cent. He still owes me 50 cents on a poker game. I was fool enough to pay with him. He is not really bad, but it's hard to make him part with his money. If you try to collect from him in those fancy clothes, he'll be suspicious and get away from you. If you want, I'll go into Fritz and ask for him, and you can keep out of sight behind me." So यहाँ पर जो हैक ड्राइवर है वो ऑथर को पूछ रहा है कि मैं तुम्हारे बीच में इंटरफियर तो नहीं करना चाहता, लेकिन क्या मुझे तुम बता सकते हो कि तुम उसे क्यों ढूंढ रहे हो? शायद से तुम पैसों के लिए ही उसे ढूंढ रहे हो. ये लुटकिंस काफ़ी लोगों को पागल बनाता है, सबसे पैसे लेता है. अभी तक कि मेरे भी 50 सेंट्स जो है वो उसके पास है, क्योंकि मैं उसके साथ एक पोकर गेम खेल रहा था और उसने मुझसे पैसे बोरो किए थे. लेकिन ऐसे तो वो बुरा इंसान नहीं है, बट पैसों के मामले में वो किसी की भी नहीं सुनता है. और अगर तुम उससे ऐसे कपड़ों में जाके पैसे मांगोगे तो वो शायद तुम्हें पे ही नहीं करेगा. तो तुम एक काम करो, जब मैं फिट्स की शॉप में जाऊंगा तो तब तुम मेरे पीछे छुप जाना, ताकि मैं उसके बारे में जाके अंदर इंक्वायरी करूं और फिर हमें पता चले कि शायद से वहाँ पर लुटकिंस है या नहीं है. ठीक है. I loved him for this by myself. I might never have found Lutkins with the hack driver's knowing help. I was sure of getting my man. I took him into my confidence and told him that I wanted to serve the summons on Lutkins. Then, that the man had refused to be a witness. When his information would have quickly settled our case, the driver listened earnestly. Earnestly means what? Very seriously. At the end, he hit me on the shoulder and laughed. "Well, we'll give Brother Lutkins a little surprise." So now, the author became very happy. He felt that कि अरे वाह, ये कितना अच्छा बंदा है, इसकी वजह से मेरे को लुटकिंस बहुत जल्दी मिल जाएगा. तो हैक ड्राइवर काफ़ी प्यार से बातें कर करके ऑथर को अपने पूरे जाल में फंसा देता है. और फाइनली ऑथर जो है वो उसे बताते हैं कि वो वहाँ पर लुटकिंस को ढूंढने के लिए क्यों आए हैं. वो उसे बोलते हैं कि मैं एक लीगल केस के लिए आया हूँ. वो हमारे लुटकिंस जो है वो हमारे केस का विटनेस है, और वो अभी तक के सारे
जो समन्स है उसे रिफ्यूज़ कर रहा था, किसी को आंसर नहीं कर रहा था, इसलिए मैं यहाँ पर खुद डिटेक्टिव बन के आया हूँ ताकि मैं लुटकिंस को ढूंढ सकूँ। सो फाइनली जो हेड ड्राइवर है वो ऑथर के शोल्डर को पैट करते हैं और बोलते हैं ठीक है, हम लुटकिंस को एक सरप्राइज़ देंगे, चलो उसे जाके ढूंढते हैं। लेट्स स्टार्ट ड्राइवर, मोस्ट फोक्स अराउंड हियर कॉल मी बिल और मैग्नुसन। तो अभी यहाँ पर ऑथर ने उसे ड्राइवर बोला, तो वो क्या बोल रहा है हेड ड्राइवर कि यहाँ पर सब लोग मुझे बिल या फिर मैग्नुसन बोलते हैं। माई बिजनेस इज कॉल्ड विलियम मैग्नुसन फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग। ओके, और उसके बिजनेस का नाम उसने क्या बताया, विलियम मैग्नुसन फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग। ऑल राइट बिल, शैल वी प्रोसीड टू फ्रिट्स। सो नाउ द ऑथर सेज ओके बिल, चलो अभी हम जाते हैं फ्रिट्स की शॉप पे। Yes, Lutkins is just as likely to be there as anywhere. Plays a lot of poker. He's good at deceiving people. Deceiving means what? Making fraud. Bill seemed to admire Lutkins' talent for dishonesty. I felt that if he had been a policeman, he would have caught Lutkins respectfully and jailed him with regret. Okay, तो यहाँ पर लुटकिंस के बारे में जो बिल है, बिल मीन्स कौन है, हैक ड्राइवर, वो इतनी बुराई कर रहा है कि वो जो ऑथर है वो भी उसकी बातों में फंसते जा रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को फंसाता है, अगर वो पुलिसमैन होता तो उसे पकड़ के जेल में डाल देता है एंड ऑल दैट। ओके, तो यहाँ पर वो मिलकर ऑथर के सामने किसकी बुराई कर रहा है, लुटकिंस की। कौन, बिल। बिल किसका नाम है, हैक ड्राइवर का। इज दैट क्लियर? Fritz looked at okay. Bill led me into Fritz. Have you ever seen Oliver? Have you seen Oliver Lutkins around today? Friend of his looking for him, said Bill cheerily. Okay. So now बिल जाता है फिट्स की शॉप में और वो जाके फिट्स को पूछता है कि क्या तुमने ओलिवर लुटकिंस को देखा है आज? उसका एक फ्रेंड उसे ढूंढ रहा है। ओके, ही सेज चियरली, ऐसे मतलब खुश होते हुए वो बोलता है। ओके, बिल जो है वो फिट्स को पूछता है कि क्या तुमने देखा है लुटकिंस को? वो उसका फ्रेंड उसे ढूंढ रहा है। ओके, सो फिट्स लुक्ड एट मी हाइडिंग बिहाइंड बिल। अभी बिल के पीछे कौन छुपा था? ऑथर, क्योंकि बिल ने उसे कहा था ना कि तुम मेरे पीछे रुकना, मैं जाके अंदर पूछूंगा। सो नाउ Fritz was looking at the author and he said, he hesitated and then admitted, yes, he was in here a little while ago. Guess he's gone over to Gustav's to get a shave. Okay, so now what Fritz said to Bill, that yes, he was here only, but before a while ago, he has just went to get a shave. Okay, to Gustav's. Okay, तो गुस्टव्स की जो शॉप है वहाँ पर वो जाके शेविंग करने के लिए गया है। अभी वो थोड़ी देर पहले यहाँ पर ही था। इज दैट क्लियर? वेल इफ़ ही कम्स इन टेल हिम आई एम लुकिंग फॉर हिम। और वो फिट्स को बोलते हैं कि ठीक है, अगर वो यहाँ आएगा तो उसे बोलो कि हम लोग उसे ढूंढ रहे हैं। इज दैट क्लियर? सो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। इसके आगे का जो पार्ट है वो हम कल डिस्कस करेंगे बिकॉज द टाइम इज़ अबाउट टू गेट ओवर। ओके, और जो सीन है वो कंटिन्यू होगा। सो हम कल कंप्लीट कर लेंगे इसे, ठीक है? सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एंड यू हैव एंजॉयड द सेशन टिल हियर, ठीक है? सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।